Very good evening, everyone, to all of you who are present here with us today. So, I hope all of you are safe at your places and are doing well. Today, we are really happy to have all of you here and our speaker as well. So, today's workshop is organized by ESEL NIT Hamirpur in collaboration with Skill Valley. We'll be discussing about Google Analytics and SEO. It's my pleasure to introduce you all to the instructor for this workshop, Mr. Vivekan Patel. He's the Director of Marketing Logic Wind. A very warm welcome to you, sir, and to all the attendees. Thank you, Priti. So, are we still waiting or shall I start? Yes, sir. So I believe we can start with the workshop. All right, perfect. Yes, sir. Good evening, everyone. Let me just present my screen and then we can start. Uh, is my screen visible to all of you? Yeah, I hope so. Great. So, uh, hello everyone. So my name is Viken Patel. I'm a director of marketing at LogicWin, and currently I'm running a digital marketing agency at LogicWin. I'm also a digital marketing consultant where specialized in SEO, where I help people build a strategy like SEO strategy to grow the traffic and the overall overall business. I am also uh, uh, helping more than 10-15 clients around the world, and we are helping them grow their business right now. So uh, that's all about me, and let's start with our SEO workshop today. So in this workshop, probably I'll be teaching you all the fundamentals of SEO with major focus on execution. It means that whatever I will show you, along with teaching SEO, I will also show you how can you practically implement those things. So major focus would be the execution part, but before you start execution, I think you need to understand the basics, at least some theoretical part that you need to understand first. So that will start with that, and slowly and steadily I'll move to all the component of SEO, and I'll be giving you all the information uh, practically, like how can you perform the SEO on any website. I hope everyone is comfortable with English, or do you want me to speak in Hindi as well? If you can drop a message. Perfect. A bit of both. All right. Fine. I'll use both of them. Right. Thank you. Fine. So let's start with what you'll learn today. So these are the all basic component of SEO. So you will learn what is SEO and why is it important. Keyword research and how can you do keyword research, on-page SEO, the practical of on-page SEO, link building, build backlinks, and the technical SEO part. So these are all the component of SEO. गुड When you इवनिंग do सर। आपकी uh, आवाज नहीं आ रही सर, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। okay, is it clear now? It's all good from my end actually. Yes, sir. It's fine. It's fine. You can continue. All right. All right, so let's start understanding all the components one by one. These are the main topics that we will be covering today, right? So what is SEO? SEO, the SEO stands for search engine optimization, and it is nothing but the practice of getting targeted traffic to your website from the organic search results. So when you search on Google, you will see a lot of results, right? And whenever you search, you tend to find all the
important results, जो भी आपको चाहिए results वो आपको मिल जाता है, right? So that is जो हमारी वेबसाइट है, जो भी हमने बनाई है, हमारी बिजनेस वेबसाइट या हमारी पर्सनल वेबसाइट है, तो our goal is that we will be able to rank on that particular page of Google so that more people will come to Google, and whenever they find something, our website will come on the top, right? So this is a simple definition of SEO कि हमें website ऊपर लानी है. That's what we want to do or we want to achieve in the SEO. So starting with why is it important? Because you don't have to pay for ads. I hope everyone is aware about the paid advertisement. Google is also supporting paid advertisement. Facebook also run paid advertisement, right? So for all the ads that you do, you have to pay money, right? But when you perform SEO, it will bring you a long-term consistent result, and that is also for free. You don't have to pay for traffic. Of course, you have to pay some service fee to someone who is doing it, but apart from that, you don't have to pay. And you will also get consistent traffic once you rank higher. And if you maintain your website very well by updating the latest content, updating the new things, you will be able to get a continuous traffic from the Google, and it will be a kind of compounding effect where you'll be able to grow your traffic from 100 to 10,000 to 100,000 as well, right? So that's the possibility of SEO. Another point is like you will get targeted audience. Why? Because somebody is searching for something, and if they are searching for something and your website is appearing into the search result, it means that that person has some intention behind the search, right? तो उसका कुछ टारगेट होगा तभी वो सर्च कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा होगा, right? So if they are landing on our website from Google, it means that they are looking for something. If they are looking for something, in that case, that is a really good user for us, and eventually going forward, that user will convert for our services or products, whatever we are offering on our website. And the lastly, why is it important for you guys? As per one of the study in October 2019, there are 4 billion Google users, and that's why the SEO industry is approximately $80 billion industry. That's the statistic says from one of the case study. So it's a very huge demand for SEO right now in the market. And if you or anyone who are learning SEO and going into the market and looking for a job, I think it will be really beneficial for all of you, because there is a huge demand for SEO these days. So let's start with understanding the search engine. When I say search engine, it is Google, Bing, DuckDuckGo, and there are more, right? So how actually it works? What actually search engine? What is search engine basically, right? So search engine is basically two different things. One is the database of information, and another is algorithm that computes which results to return and rank for given queries. इसका मतलब क्या है कि सर्च इंजन क्या है कि एक डेटाबेस है इंफॉर्मेशन का. फॉर एग्जांपल गूगल है, तो गूगल के पास डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, and along with that Google has written some algorithm on top of that, so that whenever somebody is searching for something in Google, Google will come with the proper search results. It means that कुछ सर्च किया हमने, फॉर एग्जांपल रेड शू सर्च किया, तो रेड शू जहाँ पे भी जिसकी भी साइट पे रेड शू मिल रहा है, ओके, एंड उसका भी उसमें से कोई साइट आपको लेके देगा ताकि यू विल गेट द रेड शू रिलेटेड सर्च क्वेरीज. सो अल्गोरिदम है एंड द इंफॉर्मेशन है. दैट इज two things contain search engine contains basically. And as I mentioned, in case of Google, lot of web pages are there that they crawl, and algorithm will decide कि कौन सा दिखाना है. Majorly there are two search engine, Google and Bing. Here is the market share of search engine, where you'll be able to see that more than 90% people are using Google, and there are few other percentage for Bing, Yahoo, and Baidu's and other search engines, right?
So Google and Bing are the major ones, and when you do SEO, majorly you can focus on Google. That's what most people do because a huge chunk of people are using Google for their search engines. This is a simple graph that how search engine work, or maybe we can say how Google works. So what it does is there are lots of websites on the Google, right? So there is a Google Spider, or you can say crawler, Google crawler. What they does is they crawl the URL on the internet and put all those URLs into the scheduler. तो there is a scheduler which decides के कौन सी URL को कब क्रॉल करना है. मतलब आपकी वेबसाइट पे गूगल बार बार आता रहेगा एंड आपकी वेबसाइट पे देखता रहेगा कि क्या अपडेट हुआ है, और जो भी अपडेट हुआ है वो स्टोर कर लेगा अपने डेटाबेस, राइट. एंड देयर इज अ शेड्यूलर के जो कब 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 कौन सी वेबसाइट को क्रॉल करना है वो डिफाइन करेगा. After that, crawler, after that, I mean, those things will go to parser. Again, these are all technical terms, but I'm giving you just basic understanding. So once once Google crawl the website, it goes to indexing. मतलब उनके database में कहीं पे store हो जाता है, अगर simple language में बताऊँ तो. And then whenever somebody is searching for something, वो database से वो result लाके आपको दिखा देता है Google. And that is why it is very fast, right? बिकॉज उनके डेटाबेस में ही सब कुछ स्टोर होता है, वो कॉन्स्टेंटली आपकी वेबसाइट पे जाके अपडेटेड डेटा लेके आता है, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस आर ऑल टेक्निकल थिंग्स, बट इफ यू आर डूइंग एसईओ यू शुड अंडरस्टैंड दिस सिंपल टेक्निकलिटीज. दिस विल हेल्प यू अलोंग द रोड टू डिसाइड कि कैसे उसको टारगेट करना है. So there are these are the major ranking factors. Let's look at some of the ranking factors, like what Google consider when they show the search results, right? So अगर मैं बताऊं कि Google को क्या करना है, right? What is the goal of Google? So Google's goal is to provide the best search result based on the query that you have written, right? So for example, मैं red shoe लिख रहा हूँ Google में, तो Google का एम ये है कि मुझे जो रेड शू चाहिए उसकी यूआरएल में लाके दूं ताकि मैंने जो क्वेरी लिखी है वो मुझे मिल जाए, राइट. सो दैट इज द एम ऑफ गूगल. अलोंग विद दैट गूगल वांट्स के जो बेस्ट वेबसाइट है वो ही आए, so that I can go to that website and I can fulfill whatever I come from, right? Either I come to buy that shoes, or I'm looking for some information, or I want to compare something, right? So जो भी मुझे चाहिए वो Google will be able to वो Google का basically goal है, वो experience, user experience उसको बढ़ाना है Google को. That's what he want to do, right? So search intent is one of them, as I mentioned, कि मैं जो intention से search कर रहा हूँ वो Google will consider it highly, because if my intention is not if my intention is not satisfied, it means that Google has not shown me the proper results, and that is not good for Google. That is not good for Google, because Google wants to show me the best results, right? Another ranking factor is backlink. Backlinks means if I have a website, मेरी एक website है तो मुझे third party website से जो भी links मिल रही है, right? If website 1 has given link to website 2, it means that website 2 के पास website 1 की backlink है. So वो backlink is the another major ranking factor, because Google consider that if somebody is linking to my website, it means that my website has some really good authority. And if my website has a good authority, it means मेरी website अच्छी है, and जब भी Google को if anyone search for anything and if my website is relevant, then Google will consider my website higher, because if somebody has a less authority and if I have a more authority, then my website will be on top, right? That is what Google wants, and that is why these are the ranking factor. And the user experience signal, it means that मेरी website fast होनी चाहिए. अगर user मेरी website पे आके अगर चला जाता है, it means it's not a good sign for user. Google कि ये website पे आके चला गया, it means user को ये नहीं चाहिए था, right?
So if user don't want that, in that case, that's not a good result. So Google will not consider that. So again, these are not the only factor. Overall, Google has more than 200 factors that they consider. We cannot talk about all of them, but these are the major things that you need to take care. As I mentioned, we always have to stick to fundamentals. The more fundamentals we do, like more, if we focus more on fundamentals, I think we would be able to gain a good traction through SEO. We don't have to look for a lot of things, but it's very important that you keep an eye on Google algorithm update. So whenever there is an update, you have to go and check, and accordingly, if there are required some changes required to a website, I think you should do that. So let's start with keyword research. That's the first component. Let's understand what is keyword research. So as I already mentioned about the query, right? So what are keywords? Keywords are nothing but words and phrases that people type into the Google. If I'm typing for red shoe, it means red shoe is the keyword, right? And keyword research is a kind of process. Keywords is red shoe, and if as an SEO person, if you are researching that what keyword people will find, it means that it's a process of finding relevant words and phrases that is your target audience are searching for in Google, right? If I'm selling the shoes, right, and red shoe also I'm selling, right? So red shoe is my keyword, and so that if I search, if for my website, if I do keyword research, I will find keywords around shoes. It could be red shoe, it could be blue shoes, buy shoes. There are a lot more keyword that I can find, and that is the process itself is called a keyword research. So there are 4 types of keywords basically. One is informational. So if somebody is typing that what is SEO, for example, or how can you perform SEO, right? Or who, where, why, right? Guide, books. These are the words and phrases that people use along with the query. So if this type of query is there, then it means that it is informational keyword. Why? Because somebody is searching for information on the Google, right? They're not trying to buy something. They are searching for information. That is why we can bifurcate it as a informational keywords. Then there are another set of category which is transaction. It means that somebody is trying to buy something or purchase something, right? So if they write buy red shoe or buy order or order red shoe or purchase red shoe, right? It means that they are trying to buy something. It means that they are going to do some transaction on the website. That is why it is called transaction keywords. Another is commercial investigation. It means that if I want to buy a shoe, but before that I want to compare it, or I want to look for the review, right? For example, if I'm going to buy Nike shoes, but I want to compare it whether Nike is good or Puma is good, then I will look for the reviews, or I'll compare them, or I'll write that okay, compare these shoes, or a review of Nike shoes, or something like that, right? So if this kind of queries are there, base, top, pricing, so it means that I'm trying to investigate something on a commercial aspect. Right? And the last thing is navigational keywords, which means that if I search for Nike, it means that I'm searching for Nike's website. If I'm searching for, let's say, Google, or let's say Microsoft, it means that I'm searching for that particular website, right? If I write for any product name or service name, in that case, I want to navigate somewhere, right? I want to navigate to any website. It means that it is a navigational keyword. So when you perform a keyword research, you bifurcate your keywords into these categories. This way, you will be able to target keywords very easily. So here's how to do keyword research. So let's check practically that how can we do that. So first step is to understand the business. That is the first step. For example, if I'm selling a salwar kameez and I have a portal, right? So I'm taking an example of, let's say, this Nykaa fashion. There's a website, they are selling salwar kameez, right? So if I want to do SEO for this,
So what I'll do is I'll talk to business owner. I will find out what are the topics that we need to cover. So let's say salwar kameez, sari. There might be many other possible things that they are selling, right? For here. So I'll take an example of salwar kameez, for example. So if I want to start with this, so I'll list down all the topics, and one of the topic is salwar kameez, for example. From there, what I'll do is I'll go to Google. I will type in salwar kameez, and Google will give me all the other keywords. So this is called Google Suggest. So Google will automatically suggest some keywords to me based on the whatever I type in. So what I'll do is I'll collect all the keywords from from here into XLS. So let's say salwar kameez manufacture is not my target because I have a e-commerce website and I don't want manufacture to. I don't need manufacture as a keyword, right? Because I'm not looking for manufacture. I want to target people who want to buy salwar kameez. So I'll not consider this as a keyword, but this is my keywords. Salwar kameez dress, salwar kameez pattern, salwar kameez dress design, right? Salwar kameez web series, again not my keyword. Salwar kameez designs, salwar kameez for girls. So I'll collect all these keywords somewhere, okay? And the second step I'll do is I'll search for these keywords. Then I will go at the end of Google and I will find out that what is related search. There I will find more keywords. So salwar suit for 15-year-old, salwar suit for girl child, right? So I find out more keywords. Then I will again click here. I will try and find more keywords. Maybe I will start with salwar kameez. As you see, salwar kameez design catalog, Pakistani salwar kameez, UK, for kids, cotton salwar kameez, right? Again, I will click here. I'll again go down. I will have more keywords. Likewise, I will collect all possible keyword around this particular topic. Right. So this is the first step that I will do. Okay. From here, I will start all my research. After that, I will go to any tools. Tool could be Google Keyword Planner. Okay, tool could be Google Keyword Planner, and or maybe SEMrush. I have opened this. Okay, so I'll search for this keyword over here, and they will give me the volume. Volume is how many people are searching for this particular query in Google every month. So 40,000 approximately 40,000 people are searching for salwar kameez in Google. Okay, every month in India, and these are the statistic of out of India. So this tool is free. First of all, if you have any query, like this tool is free for some limit, so you can use it. Like daily, you will allow let's say 10 searches or maybe 15 searches. I'm not sure, but you can try this tool for free. Okay. So there are, yeah. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर. सर आप थोड़ा हिंदी और इंग्लिश अगर मिक्स कर सकते समझा पाओ. Okay. Sure. Yes, sir. Yeah. Okay. So सलवार कमीज मैंने कीवर्ड जब रिसर्च किया यहाँ पे, तो देर आर मेजरली 3 फैक्टर दैट आई हैव टू सी. फर्स्ट आई विल गो टू गूगल और यहाँ से मैं ये सब फाइंड करूंगा, राइट? और वो सब कीवर्ड देन आई विल यूज दिस टूल SEMrush, और आई विल ऑल्सो यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, राइट? गूगल हैज ऑल्सो फ्री टूल. वहां जाके मैं ये कीवर्ड सर्च करूंगा एंड आई विल गेट 3 मेजर थिंग्स दैट आई रियली वांट. 3 चीजें बताएगी कि कौन सा कीवर्ड मुझे कब टारगेट करना है, राइट? सो अगर मैं सोचूं कि सलवार कमीज 40,000 लोग एवरी मंथ इंडिया में सर्च कर रहे हैं ऑन गूगल कि सलवार कमीज, सो दे आर लुकिंग फॉर सलवार कमीज, राइट? एंड ग्लोबल वॉल्यूम इज 100 approx 100,000 plus, right? So volume is one of the major factor that you need to look into. Volume means कितने लोग every month ये keyword को search करते हैं, right? Another major ranking factor is another factor for keyword is keyword difficulty. It means that ये कितना difficult है SEO में rank करने के लिए.
ठीक है। सो ये टूल आपको ये डेटा देगा। आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाओगे तो वहां पे कंपटीशन लो, हाई या मीडियम होगा, राइट। सो दैट इज अ पेड कंपटीशन, पेड सर्च के लिए है, बट स्टिल इट विल गिव यू एन आइडिया कि कौन से कीवर्ड फर्स्ट टारगेट करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। सो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड डिफिकल्टी। एंड द अदर फैक्टर इज सीपीसी। सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। सो इफ मुझे यहाँ पे ऐड करना है, सलवार कमीज कोई लिखे और मेरी ऐड ऊपर आए, ऐसा करना है गूगल में, तो मुझे $0.04 पे करने पड़ेंगे एवरी क्लिक, राइट। So these are the three factors that I will consider to start with, and for all the keywords जो मैंने कलेक्ट किए हैं वहां से, मैं इन सब के लिए ये तीनों डेटा निकालूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल सी कि लो वॉल्यूम कीवर्ड कौन से है। मैंने इसे लो वॉल्यूम, इट मीन्स दैट अगर 100 लोग सर्च कर रहे हैं वो वाले कीवर्ड कौन से है, 200 लोग सर्च कर रहे हैं वो वाले कौन से है, एंड देन आई विल गो टू हायर वॉल्यूम के 40,000 वाले कितने। नाउ आई विल बाइफरकेट द कीवर्ड्स कि ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ से ढूंढे हैं उसमें कौन से मुझे ब्लॉग में टारगेट करने हैं। इफ यू सी, हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है, राइट। सो जो भी कीवर्ड ये कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इंफॉर्मेशनल वाली, राइट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज सलवार कमीज, दैट कुड बी वन ऑफ द कीवर्ड, राइट। और वेयर कैन आई बाय सलवार कमीज, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कीवर्ड। और देयर माइट बी मेनी मोर, लाइक, बराबर है। तो वो आपको इंफॉर्मेशनल कैटेगरी में ऐड करना है और उन सबको आपको यूज करना है ब्लॉग में, ठीक है। ब्लॉग जब भी आप वेबसाइट पे डालोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट हो या नॉर्मल वेबसाइट हो, आपको ब्लॉग करना जरूरी है। आई थिंक ब्लॉग इज अ गुड वे टू गेन इनिशियल ट्रैक्शन ऑफ द ट्रैफिक। तो जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है तो इसमें डालो। अगर ट्रांजेक्शनल है, जैसे बाय सलवार कमीज, राइट, तो उसको आप ट्रांजेक्शनल में ऐड करो। सो that is how you can bifurcate all the keywords volume wise, difficulty wise and CPC. So आपको select पहले low volume करने हैं और difficulty कम है वो करने हैं, okay? And साथ में अगर CPC value उसकी high है, अगर लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, it means it's a good keyword because वहाँ पे conversion आ रहे लोगों के paid ads के, right? So अगर paid ads के conversion आ रहे, it means it's a good keyword for SEO. और अगर उसमें हम रैंक करें तो बिना पैसे पे किए हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी, तो वहां से लोग आके परचेज करेंगे, ठीक है। आइदर ई कॉमर्स में परचेज होगा, अगर सास है, सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे लीड्स जनरेट होगी, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। यस सर। परफेक्ट। Okay, so next thing that we will do in this tool is कि हम यहाँ पे जैसे एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड को मैं पेज में टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे और उसके वेरिएशन मिलेंगे। जैसे सलवार कमीज डिजाइन है, पाकिस्तानी सलवार कमीज है, सलवार कमीज डिजाइन कैटलॉग है, यहाँ पे और रिलेटेड कीवर्ड है कि सलवार एंड कमीज, राइट, लेटेस्ट सलवार कमीज। So, ये सब कीवर्ड मैं यहाँ से लूंगा along with volume and keyword difficulty and CPC। उससे क्या होगा, I will collect all the keywords, then I will filter it, और उसके बाद मैं ब्लॉग में यूज करूंगा और कुछ वेबसाइट में यूज करूंगा, ठीक है। सो इस तरह से पूरा कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस करेंगे एक पेज के लिए। मैंने सिर्फ अभी सलवार कमीज पेज के लिए ये कीवर्ड रिसर्च आपको समझाया। अगर आपके पास एक और पेज है साड़ी का, तो सेम प्रोसेस आपको साड़ी के लिए करना, ठीक है। दैट वे यू विल बी एबल टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ऑल द टारगेटेड पेजेस। लेट्स से वेबसाइट पे 10 पेज है या 15 पेज है, तो 15 पेज का एक मेन कीवर्ड होगा और उसके रिलेटेड कीवर्ड होंगे जो वो पेज पे टारगेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म अ कीवर्ड रिसर्च। एक एक्सेल में आप ये डेटा निकालो एंड देन यू डिसाइड कि कौन से कीवर्ड कहाँ पे टारगेट करना है, और अभी कैसे उसको वेबसाइट में ऐड करना है वी विल सी इन द ऑन पेजेस, ठीक है। ओके ओके, सो आई ये सब पॉइंट्स उसके रिलेटेड ही है जो मैंने समझाया अभी। एक चीज, दो चीज आपको मेन ध्यान में रखनी है। एक तो सर्च इंटेंट, जो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कीवर्ड बताए कि वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है या वो परचेस करना चाहता है या
कंपेयर कर रहा है, राइट? ये तीनों में से एक ही होगा जनरली, और उसके हिसाब से आप पेजेस में या ब्लॉग में कीवर्ड टारगेट कीजिए, राइट? तो उसका सर्च इंटेंट जानना बहुत जरूरी है. व्हेनेवर यू डू कीवर्ड रिसर्च, डू इट बेस्ड ऑन दैट. Okay. Another way to perform a keyword research is check your competition. So, for example, अगर मेरी वेबसाइट है और लेट्स से नाइका फैशन है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल. तो SEMrush या ये टूल मुझे यहाँ पे उसका डेटा चेक करने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाइका फैशन का मैंने सर्च किया तो दे विल अलाउ मी टू सी के उनको कितना ट्रैफिक मिल रहा है और बैकलिंक्स कितनी है, बहुत सारे डेटा देंगे ये लोग. सो एज यू कैन सी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उनका ऑथोरिटी स्कोर 40 है, राइट? इट मीन्स दैट इट्स अ गुड स्कोर. ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 3.9 मिलियन है, राइट? इट मीन्स दैट वो लोग को गूगल से 3.9 मिलियन यूजर एवरी मंथ मिल रहा है ऑलरेडी. वो लोग 400,000 प्लस कीवर्ड पे वो लोग रैंक कर रहे हैं. यहाँ पे जो नंबर है 400,000 है, राइट? तो इतने सारे कीवर्ड पे वो लोग की वेबसाइट रैंक कर रही है गूगल में. जरूरी नहीं कि फर्स्ट पेज पे ही करे, बट कर रही है. ओके, सो ये डेटा हमें मिलता है, एंड देन नाउ वी नो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग हमारी वेबसाइट भी इस तरह की पोजीशन पे लेके जा सकते हैं थ्रू SEO. पेड सर्च का भी डेटा है कि पेड सर्च में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं. 184 कीवर्ड्स है. बैकलिंक्स है. बैकलिंक मतलब किसी और ने naikafashion.com पे लिंक किया है, राइट? तो उस 233,000 बैकलिंक्स है अप्रोक्सीमेटली. उसमें से 1,019 आई मीन अप्रोक्सीमेटली कंसिडर के 1100 जैसे उनका रिफरिंग डोमेन्स है. रिफरिंग डोमेन्स मतलब एक ही डोमेन से हमें मल्टीपल लिंक्स मिल सकती है, बट जो यूनिक डोमेन्स है, मतलब डोमेन्स है, वो सिर्फ 1100 ही है सिर्फ, राइट? उसके अलावा हम कंट्री वाइज देख सकते हैं ट्रैफिक. उसके अलावा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देख सकते हैं हम लोग. टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी देख सकते हैं यहाँ पे, राइट? कंपटीशन देख सकते हैं यहाँ पे. ब्रांडेड कीवर्ड है, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है. ब्रांडेड कीवर्ड मतलब कोई नाइका फैशन लिख के आ रहा है गूगल से तो वो ब्रांडेड हो गया, और उसके अलावा जो भी सर्च कर रहा है उसको नॉन ब्रांडेड कीवर्ड बोलते हैं, और बाकी सब थोड़ा पेड का डेटा है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि ये लोग कितने कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं, राइट? तो हमें यहाँ से वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि ये हमारा कॉम्पिटिटर इतने सारे कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो वो कीवर्ड हम कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से. समझ लो कि हमारे पास 3 या 4 कंपटीशन वेबसाइट है जो हमने यहाँ पे डाली, और सबके कीवर्ड हमने कलेक्ट किए. हमें URL के साथ मिलेगा कि ये कीवर्ड पे ये URL रैंक हो रहा है, राइट? और ये पोजीशन है, नंबर 1 रैंक हो रहा है. तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से जो भी अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढेंगे कि ये लोग यहाँ पे रैंक कर रहे हैं और उसका और हमारा सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें से कौन से कीवर्ड है जो हम टारगेट कर सकते हैं, राइट? सो अगर हम इसमें से भी कीवर्ड लेंगे तो वो वाली प्रोसेस तो करेंगे ही करेंगे, बट इसमें से भी हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें ज्यादा सेल आने के चांसेस है या लीड आने के चांसेस है. तो कंपटीशन रिसर्च से भी हम कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो कीवर्ड भी हम हमारे पेजेस में यूज करेंगे, राइट? सो अगर मुझे यहाँ से जितने भी कीवर्ड मिलते हैं मैं बाइफरकेट करूंगा. सर्वर कमीज वाले कितने हैं, साड़ी के कितने हैं, लाइक वाइज प्रोडक्ट वाइज भी बाइफरकेट करूंगा, राइट? सो उस तरीके से कीवर्ड का बंच बनाएंगे, एंड देन वी विल यूज इट ऑन द वेबसाइट. So this is what I mentioned here. I hope I'm clear enough on how to perform a keyword research. Let's move to on-page SEO. On-page SEO is nothing but performing an SEO on the website itself.
अगेन इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट पेज सो दैट हम वो वेबसाइट पेज को गूगल में हायर रैंक करवा सकें। हमारा एम है कि फर्स्ट फाइव सर्च रैंकिंग में वो आ जाए, राइट। एंड अगर वो फर्स्ट 5 में आता है देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड ट्रैक्शन, गुड ट्रैफिक फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ। सो इसमें देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स लाइक मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, ये सब हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है जो भी कीवर्ड्स हमने रिसर्च किया है और डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल हमने सलवार कमीज के लिए किया, तो सलवार कमीज के जो पेज है उसको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो वो मेन कीवर्ड और उसके रिलेटेड कीवर्ड को हमें पेज में नेचुरली ऐड करना है इन द कंटेंट, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड अदर पैरामीटर्स। आई विल शो यू फर्दर। बट दिस डेज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमारा पेज सर्चर के इंटेंट को और यूजर एक्सपीरियंस को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सलवार कमीज लिख रहा हूँ और अगर मेरे पेज पे सलवार कमीज की जगह पे मैं यहाँ पे रिजल्ट में कुछ और दिखा रहा हूँ, सो दैट इज नॉट गुड, राइट। गूगल को आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा समहाउ कि यहाँ पे सलवार कमीज नहीं दिखा रहे। सो जो भी हम मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तो अगर हम हमारा जो सर्च इंटेंट है उनका सलवार कमीज का, तो वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम गूगल को ये टॉपिक कौन सा है वो पता चले, राइट। सो वी हैव टू यूज ऑल दी पॉसिबल कीवर्ड्स सो दैट गूगल विल अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक पे वो कर रहे हैं। ओके एंड दी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, जिसमें वी हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड एंड यूजर को जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। So now let's take an example on how to optimize for on-page SEO. So there are many parameters that I have already written, but let's check in the page itself. So this is one of the page that I'm aiming for. This is e-commerce website, but you can also do the similar process for non-e-commerce website. Like कोई simple सा page भी हो सकता है, ठीक है? So first parameter is जो Google में हमें दिख रहा है, right? मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे मेटा टाइटल है, ये जो ब्लू वाला है, और ये जो यहाँ पे है मेटा डिस्क्रिप्शन। बट लेट मी टेल यू कि अभी रिसेंट एक अपडेट आया था जिसमें गूगल ने क्या किया है कि दे आर नॉट यूजिंग मेटा टाइटल जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे। नाइका फैशन का होता तो मैं बता देता, बट वो नहीं है। बट एनीवे, सो गूगल ने क्या किया है कि वो खुद ये मेटा टाइटल अपडेट कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सलवार सूट फॉर वुमन एंड बाय डिजाइनर सलवार सूट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो गूगल क्या करेगा कि इसको चेंज कर देगा और लिख देगा सलवार कमीज। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। गूगल काफी कुछ मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुद लिखता है ताकि यूजर को वो स्पेसिफिक टॉपिक का पता चले, ओके। That was a very recent update और Google ये काफी टाइम करता है। But you have to use meta title and meta description. If you are using WordPress, then there are plugins called Yoast SEO or All-in-One SEO, which allows you to add meta title description very easily. और अगर e-commerce है, then also you will be able to see the option of adding those SEO meta title and description. Any website you use, any backend you have, you will have this option to add. The next parameter for on-page SEO is H1 tag. So this is a H1 tag for Nykaa Fashion. So as you can see, यहाँ पे H1 tag है जिसमें उन्होंने लिखा है सलवार सूट एंड सेट्स। So this is related to सलवार सूट, so उन्होंने ये टाइटल दिया। यहाँ पे साथ में उन्होंने 11,077 ऐसा नंबर भी लिखा है, राइट। क्यों लिखा है? बिकॉज दे वांट के यूजर आए और देखे कि हमारे पास 11,000 कलेक्शन है यहाँ पे, राइट। सो अगर वो नीचे नहीं जाता यहाँ आके तो वो जाएगा, बिकॉज दे सी कि यहाँ पे वेराइटी बहुत है। दैट इज व्हाई दे हैव एडेड। दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द वेबसाइट पेज। अगर मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कलेक्शन है, दैट इज व्हाई दे हैव एडेड इट हियर।
Okay, I hope I'm making sense. Okay. So this is H1 tag जहाँ पे we should add our keyword. ठीक है, पहले हमने मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देखा जहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड हमें टारगेट करना है. तो हो सकता है सलवार कमीज हमारा मेन कीवर्ड है, तो हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनका सलवार सूट फॉर वुमन है, राइट. तो सलवार सूट फॉर वीमेन उन्होंने ऐड किया है एज अ मेन कीवर्ड, और सलवार सूट यहाँ पे भी ऐड है. इट मीन्स दैट दे हैव एडेड कीवर्ड सलवार सूट एट बोथ द प्लेसेस, राइट. लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है, गूगल हमें इसमें कीवर्ड होना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यूजर को कन्विंस करने के लिए है. गूगल इज नॉट यूजिंग एज देयर रैंकिंग पैरामीटर फॉर ऑन पेज एसईओ, बट दिस इज गुड टू इम्प्रूव द क्लिक थ्रू रेट. यहाँ पे जितने लोग पढ़ेंगे और उनको समझ में आएगा तो वो क्लिक करेंगे यहाँ पे. दैट इज व्हाई वी ऑप्टिमाइज दिस मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर क्लिक बेसिकली. ठीक है, सो उसमें कीवर्ड होगा तो इट्स गुड, अगर नहीं है देन आल्सो फाइन, बट इट हैज टू बी जेन्युइन और ऐसा होना चाहिए ताकि यूजर वो यहाँ पे पढ़ के क्लिक कर ले और आपकी वेबसाइट पे चला जाए. और सो ये हुआ. अनदर इज योर यूआरएल. So it's good to use the keyword in URL. However, अगर वो सेंस नहीं करता है then आपको नहीं करना है, right? If it's making sense then only use it. So इन्होंने सलवार सूट्स and sets यहाँ पे यूज किया है ताकि from URL itself Google will know कि ये कौन सा पेज है, right? It's always good to use specific topic or keyword in the URL. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है, राइट. और अगर ई कॉमर्स नहीं है देन आल्सो देयर विल बी अ कंटेंट ऑन द वेबसाइट. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ कीवर्ड अर्लियर इन योर कंटेंट. लाइक पहले ही 100 वर्ड्स या 150 वर्ड जो है यहाँ पे 2-3 लाइन, इसमें एक कीवर्ड होना इट्स अ गुड साइन. ठीक है, अगर नहीं है देन आल्सो फाइन, बट ऐड योर मेन कीवर्ड इनटू कंटेंट. उसके बाद आपने जो भी रिलेवेंट कीवर्ड ढूंढे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, राइट, ये वाले कीवर्ड्स के सलवार कमीज डिजाइन, सलवार कमीज, कॉटन सलवार कमीज, पाकिस्तानी सलवार कमीज. सो आप वो सब कीवर्ड जो आपने ढूंढे हैं ये पेज के लिए, वो सब कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं. बट आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू ऐड कीवर्ड, वो कीवर्ड ऐसे नहीं, मतलब ऐसे मत ऐड करो तो सेंटेंस गलत लगे. इंग्लिश ग्रामर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस शुड बी प्रॉपर. अगर उसमें वो आपने सही नहीं लिखा है तो आज या कल गूगल विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप प्रॉपर ऐड करें, यहाँ पे प्रॉपरली कंटेंट ऐड करें. जैसे उन्होंने यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारे किए होंगे, जैसे ये रहा डिजाइनर सलवार सूट, राइट. यहाँ पे भी डिजाइनर सलवार सूट है उनके हेडिंग टेक्स्ट में, राइट. सो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स उन्होंने यहाँ पे नेचुरली डाले होंगे सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपको ऑप्टिमाइज करना है वो है इंटरनल लिंक्स. व्हेन आई से इंटरनल लिंक्स, आपकी ये वेबसाइट में आपके पास सलवार कमीज भी है, साड़ी भी है, दुपट्टा भी है, राइट. तो आपको क्या करना है कि वो सब जो वर्ड्स आप यूज करोगे कंटेंट में, नेचुरली वहां से आपको लिंक करना है. ठीक है, जैसे इन्होंने किया है दुपट्टा एंड शॉल, तो यहाँ पे उन्होंने एक क्लिक, अगर मैं क्लिक करूंगा तो दुपट्टा एंड शॉल वाले पेज पे चला जाऊंगा, राइट. सो इससे क्या होता है कि इट विल बी इजी फॉर गूगल टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर टॉपिक एथनिक वेयर के बारे में है, और यहाँ पे सलवार कमीज भी है, दुपट्टा भी है और अलग अलग चीजें भी है, राइट. प्लस इंटरनल लिंक से यूजर अगर यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे क्लिक करके आपके दूसरे पेज पे जा सकता है. अगर वो यहाँ से क्लिक करके नहीं जाता है, फिर भी अगर वो नीचे आ रहा है तो यहाँ से क्लिक करके भी जा सकता है. सो आपको दो फायदे हैं. एंड गूगल जितना भी आपका स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड है उतना आपको फायदा होता है एसईओ में. ओके, एंड व्हेनेवर यू गिव इंटरनल लिंक्स यू मेक श्योर कि ये आपका एक कीवर्ड हो. नहीं सेट हो रहा है नेचुरली तो ठीक है,
बट सेट हो रहा है देन यू शुड ऐड द कीवर्ड, और वो कीवर्ड पे आपको वो लिंक करना है। ओके, सिमिलरली अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, राइट, तो ब्लॉग में आप एक्सटर्नल लिंक भी रखो। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज सेलिंग पेज आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं करना है यूजर को। बट अगर आपको एक्सटर्नल अगर ब्लॉग है जहाँ पे आप एक एसईओ के टॉपिक के बारे में लिख रहे हो या टॉप 10 सलवार कमीज के बारे में लिख रहे हो, राइट, और आपको पता है कि टॉप 10 में से 5 या 8 आपके हैं आपकी वेबसाइट पे और 2 किसी और के भी लेने हैं, तो देन यू कैन give an external link to those website also. This way what happens is कि आप कोई और आपसे भी अच्छी वेबसाइट की लिंक दे रहे हो, इट मीन्स दैट गूगल विल अंडरस्टैंड कि ये एक इंडस्ट्री का पर्टिकुलर टॉपिक है, और अगर आपने लिंक दिया है तो आपका भी अथॉरिटी थोड़ा बढ़ेगा बिकॉज उनका भी अथॉरिटी है, और गूगल विल कंसिडर के यहाँ पे रिसर्च किया है इसने और उसके बाद लिंक किया है वहाँ, राइट। तो आपकी ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छा है, दैट इज व्हाई गूगल विल कंसिडर कि एक्सटर्नल लिंक इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, और वो आपको रैंक करने में हेल्प करेगा। इट डजंट मीन कि ये नहीं करोगे तो नहीं रैंक होगा, बट इट इज ऑलवेज गुड टू डू दिस। ओके, ऑलराइट, अनदर थिंग इज इमेजेस। तो आपकी जितनी भी इमेजेस है यहाँ पे, तो उसमें अल्टर टैग होते हैं, मतलब गूगल कभी इमेज को डायरेक्टली समझ नहीं पाता है, राइट। अभी एआई और उससे वो समझता है कलर वलर, बट दे डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। सो देयर इज अ टैग कॉल्ड अल्टर टैग, और वो अल्टर टैग में क्या होता है कि यू हैव टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिंक कुर्ता है या पिंक सलवार सूट है, तो आपको ऐड करना है कि डिजाइनर पिंक सलवार सूट, और वो प्रोडक्ट का नाम गजरा गैंग है तो वो भी लिखना है, राइट। उससे क्या होगा कि गूगल विल अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली किसके बारे में है। और अगर कोई इमेज सर्च कर रहा है, अगर मैं यहाँ जाके सलवार कमीज का इमेज सर्च कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ से भी आपका रैंकिंग होने के चांसेस हैं, either this image or maybe any other image. Okay, so these are the basic factors that you should consider. Or of course you have to optimize your image. For example, आपकी image बहुत ज़्यादा heavy नहीं होनी चाहिए, page load कम लेना चाहिए, right? और बाकी सब जो पैरामीटर मैंने समझाए वैसे you have to optimize it. So these are all the parameters that I have written. So I would like to ask if there are any question, any confusion so far, you can write down in the chat and I'll address them. Okay. सर Yes. सर जो अपने कीवर्ड यूज करेंगे सर, उसकी डिफिकल्टी अपने को मिनिमम रखनी है ना, जितनी पॉसिबल हो सके। करेक्ट, पॉसिबल हो सके इतनी मिनिमम रखनी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमम है तो ही रैंक होगा। If your keyword difficulty is let's say 80%, then also there is a scope, but it may take time because आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। शायद आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, वहाँ पे ज्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको वेबसाइट, then that keyword will rank, but always start with low volume and less difficulty keywords. अगर उसका CPC वैल्यू अच्छा है तो that is a very good keyword for us, even though उसका वॉल्यूम सिर्फ 10 है, right? अगर उसका वॉल्यूम सिर्फ 10 है then also it's a very good keyword. सर वॉल्यूम कम होने का मतलब सर वो कम ऑडियंस को टारगेट करेगी। करेक्ट, बट जब आपकी वेबसाइट नहीं है, न्यू वेबसाइट है, तो आपका अथॉरिटी भी नहीं है, राइट। तो अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो कम वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड है उसको पहले टारगेट करो थ्रू ब्लॉग या थ्रू पेज। जब आप ऐसे 10 कीवर्ड पे रैंक हो जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लो वॉल्यूम कीवर्ड टारगेट किए जिसका वॉल्यूम शायद 50 है या 100 है, बराबर है, तो वो सब कीवर्ड पे अगर आप पहले पेज पे रैंक हो गए तो गूगल नाउ नो कि योर वेबसाइट इज रैंकिंग फॉर 10 कीवर्ड्स ऑन फर्स्ट पेज. It means that now your website authority will increase,
in terms of Google. Like Google will see कि आपका authority increase हो गया because आप already rank कर रहे हो कुछ keyword पे, right? उसके बाद when you go for 1000, 2000, 5000 वाला keyword, volume वाला keyword, then it will be easy for you to rank those keywords because आपका authority build हो रहा है, आप already rank कर रहे हो, आपका traffic आ रहा है, right? So that is how you can start with low volume and go to the high volume keyword. हाँ, बट ऐसा नहीं है कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड आपको करना ही नहीं है. जैसे आपकी वेबसाइट है, अगर मेरा ये सलवार कमीज का एग्जांपल लेते हैं तो उसका पेज है, तो वहां पे तो मैं हाई वॉल्यूम कीवर्ड टारगेट करूंगा, बट मेरा एसईओ का एफर्ट्स पहले मैं लो वॉल्यूम कीवर्ड वाले ब्लॉग वाले पेजेस पे डालूंगा, वहां पे मैं रैंक करना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ज्यादा फोकस करूंगा. मतलब वो दोनों साथ में ही करेंगे, बट पहले फोकस है कि कहीं पे हम रैंक लेके आए ताकि हमारी ऑथोरिटी और बढ़ जाए. ओके सर. वैसे सर आपने कहा वो सीपीसी कम होनी चाहिए उसकी कीबोर्ड की. सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सीपीसी ज्यादा होगी तो भी अच्छा है, बिकॉज उसमें क्या होता है, सीपीसी अगर ज्यादा है तो कोई वहां पे एडवर्टाइज कर रहा है और लेट्स से कि एक क्लिक का 100 रुपया पे कर रहा है, राइट? अगर वो 100 रुपया पे कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो कीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है एंड वहां से वो जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको कुछ ना कुछ कन्वर्जन या परचेसेस मिल रहे हैं, तो वो कीवर्ड बहुत अच्छा है. ओके, और जितनी वैल्यू ज्यादा है वो कीवर्ड इतना ही अच्छा है. और वो कीवर्ड अगर आपको रैंक करवाना है एसईओ में और उसकी डिफिकल्टी कम है, उसका वॉल्यूम भी कम है, देन ऑल्सो इट्स गुड बिकॉज उसकी वैल्यू ज्यादा है. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay. If anyone have any question, just drop in the comment. फिर I'll update you. Like I'll answer them. Okay. Moving forward, backlink. Backlink is, as I mentioned, it's a process. It's a process of getting links from third-party website to your website. Okay. And link building is link building is a process of getting links from other website to your website, and backlinks are those links that we are going to get, that is called backlinks. Backlinks are one of the important factor, and जब Google ने जब start किया था तो backlink was the only factor. वो backlink के बेस पे ही रैंक करता था पुराने, मतलब 5 या 10 साल पहले की मैं बात करूँ, 10-15 साल पहले. तो whenever Google started तो वो backlink was the main parameter for them. But slowly and steadily Google smarter होता जा रहा है and because लोग उसको spam कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, right? पैसा देके वो backlink ले लेते हैं and Google now know everything. उसके that is why they are more focusing on user experience, search intent and वो सब में rather than backlinks. But backlinks are still really important part of it. You have to focus on building your links. उससे authority भी बढ़ेगा एंड ऑल्सो आपको टारगेटेड ट्रैफिक भी मिलेगा, राइट? बिकॉज अगर किसी वेबसाइट पे आपकी लिंक है और वहां से कोई यूजर क्लिक करके आने की पॉसिबिलिटी भी है, राइट? सो वहां से भी आपको यूजर वेबसाइट पे आ सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी बिल्ड अ बैकलिंक्स. सो देयर आर many ways, but we will see some of the ways that you can perform practically. So very simple way is to build backlinks, create backlinks through directory submission, product listing और blog commenting. Again, आपको यहाँ पे spam नहीं करना है. When I say directory submission, so directories like Just Dial. So Just Dial is one of the directory. Now, अगर मुझे Just Dial में करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि Just Dial मेरे जैसे बिजनेस को लिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. If I am creating, let's say, hotel software, मैं होटल सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मुझे जस्ट डायल में करने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज जस्ट डायल में कोई होटल सॉफ्टवेयर ढूंढने नहीं आता, राइट? अगर मैं वहां पे लिंक कर रहा हूँ तो मेरी लिंक कोई काम की नहीं है और इट्स नॉट गुड, वहां पे करने की मुझे जरूरत है ही नहीं. बट अगर मैं होटल सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? I'll go to website like Capterra, right? Capterra एक वेबसाइट है जहाँ पे there are different
कैटेगरीज के जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, जो भी वहां पे करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिस्टिंग है, बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे। इफ आई कंसिडर लाइक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एडमिशन सॉफ्टवेयर है। सो अगर मुझे सॉफ्टवेयर का लिंक लेना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, या फिर ऐसी ही दूसरी साइट पे जाऊंगा, बट जस्ट डायल पे नहीं जाऊंगा। बट हाँ, मैं प्लम्बिंग कर रहा हूँ, मेरी प्लम्बर सर्विस है या मेरी एसी रिपेयरिंग सर्विस है, तो मैं जस्ट डायल पे जाऊंगा, बिकॉज वो मेरे लिए ज्यादा सेंस करता है, राइट। तो आई विल मेक श्योर कि मैं जहां पे भी लिस्टिंग करूँ वो रिलेवेंट हो मेरे लिए, राइट। अगर रिलेवेंट नहीं है तो मैं वहां पे लिस्टिंग नहीं करूँगा। सो दिस इज अ वेरी इजी वे टू गेट बैकलिंक्स। हमें ऐसी ही साइट ढूंढनी है और वहां पे करनी है। अगर आपको ढूंढना है तो आप यू कैन ढूंढ के भाई डायरेक्टरी सबमिशन फॉर लेट्स से प्लम्बिंग इंडस्ट्री, ऐसा लिखोगे तो गूगल में बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी मिल जाएंगे कि कौन सी डायरेक्टरीज है जहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर होटल सॉफ्टवेयर, तो वहां पे भी बहुत सारे लिस्टिंग साइट्स मिल जाएंगे आपको। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि कैप्टेरा अल्टरनेटिव, बराबर है, तो वहां से भी आपको बहुत सारी लिस्टिंग साइट्स मिल जाएंगी गूगल से। अनदर मेथड इज ब्लॉग कमेंटिंग। सो किसी ने ब्लॉग लिखा है तो वहां पे कमेंट सेक्शन होता है, वहां जाके हम कमेंट कर सकते हैं और वहां पे वो लिंक का ऑप्शन भी होता है। बट मेक श्योर कि आप स्पैम नहीं करो। एक ब्लॉग पढ़ा और लिख दिया ऑसम ब्लॉग, ऐसा नहीं करना है आपको। वेरी हेल्पफुल ब्लॉग, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ जेन्युइनली उसको बताने के लिए है तभी वो कमेंट करो और तभी वहां से लिंक करो, अदरवाइज वो स्पैमिंग होगा और वो कोई सेंस नहीं करेगा और वो निकाल भी देंगे वो ब्लॉग वाले, राइट। सो इट्स नॉट अ गुड वे, बट इट इज अ वे। कहीं ना कहीं से तो आप कर सकते हो, बट जेन्युइनली करो, डोंट स्पैम दिस, ओके। अनदर मेथड इज गेस्ट पोस्टिंग। नाउ अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग करना है, गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर आर वेबसाइट्स लाइक सर्च इंजन जनरल, तो ये एक ब्लॉग है जो लोग एसईओ के बारे में लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैकलिंक क्रिएट करना है मेरा, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्रोच दिस गाइस और उसको बोलूंगा कि भाई मुझे आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखना है, एंड वो आर्टिकल मैं लिखूंगा, पूरा कंटेंट लिखूंगा और उसमें से 1 या 2 लिंक मुझे अलाउ करेंगे वो लोग, तो मैं वहां से अपनी वेबसाइट पे एक लिंक दूंगा, राइट। सो दैट इज हाउ आई कैन जनरेट लिंक्स। नाउ आप ये कैसे ढूंढ सकते हो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, बराबर है। तो देयर इज अ वे। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, फिर लिखना है राइट फॉर अस प्लस से फैशन। अभी क्या हुआ, ऐसा मैंने जैसे ही लिखा, सॉरी यहाँ पे, ओके, ये ब्रैकेट एक कोट में लिखने से क्या होता है कि वो वेबसाइट पे एग्जैक्ट 3 वर्ड होंगे तो ही ये रिजल्ट लेके आएगा, नहीं तो नहीं लेके आएगा, ठीक है। और प्लस फैशन का मतलब ये है कि वो फैशन वाली वेबसाइट ही लेके आएगा जिसने राइट फॉर अस लिखा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर जानने हैं तो यू कैन फाइंड कि गूगल सर्च चीट शीट ऐसा लिखोगे तो यू विल फाइंड ऑल दिस ऑपरेटर्स, ओके। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी दैट फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड कि कहाँ पे गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। सो अभी हम देखें तो यहाँ पे लिखा है राइट फॉर अस फैशन ब्यूटी हेल्थ सबमिट गेस्ट पोस्ट। यहाँ पे भी लिखा है राइट फॉर अस एटेशी ब्लॉग, राइट, राइट फॉर अस फैशन शॉपिंग गेस्ट पोस्ट, राइट। बहुत सारी साइट आपको जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। आप ये सब कलेक्ट करो और बाद में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि उनकी गाइडलाइन क्या है, उस हिसाब से हमें एक ईमेल ड्राफ्ट करना है। कॉमन होगा सबके लिए, एक ईमेल कॉमन ही होगा, सबकी गाइडलाइन ऑलमोस्ट सेम ही होती है कि आपको पर्टिकुलर फैशन टॉपिक के बारे में ही लिखना है, इतने वर्ड्स लिखने हैं, इतना लिंक देना है, राइट। सो ये कैटेगरी के बारे में लिखना है, बहुत सारा सिंपल ही होगा। तो एक ईमेल ड्राफ्ट करना है आपको सबके लिए, उसमें लिखना है कि हाय आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट एंड आई वांट टू सबमिट योर गेस्ट पोस्ट, राइट। उस तरीके से हमें एक ईमेल ड्राफ्ट करना है और उनको लिखना है और हमारा एक सैंपल पोस्ट भी भेज देना है। उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सब्जेक्ट लाइन लिखो, टॉपिक आइडिया लिखो, वेबसाइट जिसको आपको लिंक करना है, राइट, हमारी वेबसाइट की लिंक, राइट, इतना हमें भेजना है उनको। एंड इफ दे विल अलाउ तो हम सबमिट कर सकते हैं उनको और वो लोग पब्लिश कर देंगे और वहां से हमें लिंक मिल जाएगा।
It's a lengthy process, but it is the important process. You have to do this so that you can get backlinks for different websites. Okay, I hope I'm clear. यहाँ पे फैशन की जगह मैं SEO लिखूंगा तो मेरा SEO का केस पोस्ट का आएगा, उसकी जगह पे मैं let's say सॉफ्टवेयर लिखूंगा तो वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लेके आएगा, राइट? These are the software related results. अगर मेरा कोई सॉफ्टवेयर है तो मैं इन सब पे केस पोस्ट करूंगा, राइट? सो यू कैन चेंज दिस एंड यू विल फाइंड इट. यहाँ पे राइट फॉर अस की जगह पे गेस्ट पोस्ट भी लिख सकते हो, या आपको अगर इसमें ऐसा कोई वर्ड मिलता है गेस्ट ब्लॉगिंग या कुछ तो वो भी लिख सकते हो, एंड यू कैन ट्राई एंड फाइंड मोर एंड मोर वेबसाइट्स लाइक दिस. Alright, so this is guest posting. You have to perform this. The next thing is forums, Quora and Reddit. Forum are something like a question answer platform only. आप सबको I think Quora तो पता ही होगा, right? Question and answer platform है. So what you need to do is you need to find question related to your product or service. If I'm selling let's say accounting software, then I will search for accounting software in Quora and I will collect all the questions that people have asked. और फिर वही सब क्वेश्चन को जाके मैं आंसर करूँगा. In that answer, genuinely जहाँ पे भी मुझे लगता है कि लिंक ऐड करना है तो मैं करूँगा, और वहाँ से मुझे मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी. okay? उससे दो फायदे हैं. एक तो हमारी बैकलिंक बनेगी, दूसरा जो भी आंसर पढ़ेगा उसको जेन्युइन लगेगा तो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आएगा, राइट? तो ट्रैफिक भी मिलेगा, बैकलिंक भी मिलेगी. ठीक है. नाउ आपको ये जेन्युइनली करना है. लाइक आप 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर में लिंक नहीं डाल सकते, अदरवाइज वो फिर कोरा को पता चल जाएगा एंड दे विल रिमूव योर आंसर. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे जेन्युइन है वहां पे ही ऐड करें. सिमिलरली फॉरम्स भी आप ढूंढ सकते हो. जैसे अगर एसईओ की बात करें तो फॉरम मोज, आई थिंक सबको पता होगा, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मोज. तो मोज के पास एक एसईओ फॉरम है जहाँ जाके वी कैन साइन अप और वहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, या फिर नया एल्गोरिथम आया, कुछ भी आया तो डिस्कस करते हैं. तो वहाँ जाके यू कैन आस्क क्वेश्चन और यू कैन आंसर क्वेश्चंस. ओके. सिमिलरली अगर फैशन इंडस्ट्री है तो फैशन इंडस्ट्री की फॉरम भी हम ढूंढ सकते हैं, राइट? यहाँ पे भी अगर गूगल करोगे आके फैशन फॉरम्स, और यहाँ पे एक 25 फैशन फॉरम का लिस्ट है इसका, राइट? बहुत सारे लिस्ट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू पिक द गुड वंस, एंड वहां जाके आप ट्राई करो कि वहां से लिंक्स मिले आपको. अनदर गुड वे इज टू क्रिएट लिंकेबल एसेट्स. इट मींस दैट जैसे आप एक गाइड बनाया, आपने कोई टूल बनाया, या कोई रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखा, राइट? या फिर इन्फोग्राफिक बनाया. आई होप आप सबको ये टर्म्स पता है, इन्फोग्राफिक. अगर नहीं है तो लेट मी शो यू. तो जैसे हम कोई भी एक टॉपिक ले लें कि टॉप 10 फैशन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, राइट? एंड वो 10 ट्रेंड्स हम ऐसे ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दे, उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक. तो ऐसे इन्फोग्राफिक अगर हम बनाएंगे, राइट, और वो हमारे ब्लॉग पे होंगे, जब बनाने के बाद जितने भी फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं उसको एक ईमेल करेंगे कि आई हैव क्रिएटेड टॉप ट्रेंड्स ऑफ इन्फोग्राफिक, और इफ यू विश यू कैन लिंक टू योर दिस एंड दैट ब्लॉग और यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया. तो इससे दो फायदे होंगे. एक, हमारा इन्फोग्राफिक स्प्रेड होता है, वो का सोशल पे शेयर करते हैं. सोशल पे शेयर नहीं करते हैं, अगर ब्लॉग में लिंक करते हैं तो वहां से हमें लिंक बैक मिलेगा, राइट? सो ऐसे एसेट्स आप क्रिएट करो, राइट? या फिर आपने एक ब्लॉग लिखा जहाँ पे सर्वे किया आपने किसी का, फॉर एग्जाम्पल कि आपने फैशन इंडस्ट्री में एक सर्वे किया और पूछा कि कैसी सलवार कमीज लोगों को पसंद है, कौन से कलर की सलवार कमीज ज्यादा पहनते लोग, ऐसे एक क्वेश्चन बनाया और एक सर्वे का फॉर्म भेजा 100 लोगों को. अगर 100 लोगों ने आंसर दिया तो हम उसमें से एक ट्रेंड बनाएंगे कि भाई 50% लोग ब्लैक सलवार कमीज पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल. आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. ओके, ऐसा होना जरूरी नहीं है या ऐसा करना जरूरी नहीं है, बट यू कैन डू दिस in any industry. You can survey people, from that survey conclude the results, create some results and then publish it as a blog, right?
So for example, SEO industry में how people are doing it. So this is one of the blog for SEO. और उन्होंने एक blog लिखा है कि we have analyzed 3.6 billion articles and here is what we learned about evergreen content. So evergreen content मतलब जो content 15, 20, 25 साल तक भी ऐसे ही रहेंगे, राइट? तो उनका एक स्टडी किया और यहाँ पे सब ग्राफ्स वगैरह उन्होंने ऐड किए कि भाई कौन से टाइप के कंटेंट होते हैं, तो उन्होंने परसेंटेज वाइज ये डिफाइन किया. एंड लाइकवाइज देयर आर मोर थिंग्स. सो दिस इज काइंड ऑफ रिसर्च बेस्ड आर्टिकल और आर्टिकल व्हिच पीपल वांट्स टू अंडरस्टैंड. अभी मैं जब भी कंटेंट के बारे में आर्टिकल लिखूंगा, कंटेंट मार्केटिंग या कोई भी, तो आई विल रिमेम्बर दिस एंड यहाँ पे मैं लिंक करूंगा कि ये रिसर्च आप पढ़ो, राइट? सो मैंने जब यहाँ पे लिंक किया तो ऑटोमेटिक किया, ये ऑथर ने मुझे प्रमोट नहीं किया कि मुझे लिंक करो, राइट? सो ऐसी एसेट क्रिएट करने से लोग खुद ब खुद लिंक करेंगे एंड इट इज ऑल्सो वेरी गुड चांस कि आप गूगल में भी रैंक करो ये ऐसे आर्टिकल. So that is how you can build other backlinks. Another next method is broken link building. So for example, broken link building मतलब क्या होता है कि there is a term called broken links. It means that आपकी वेबसाइट में आपने कोई और वेबसाइट की लिंक दी हुई है, राइट? तो वो लिंक अगर चल नहीं रही है और अगर 404 एरर आ रहा है, it means that वो broken link है. Okay? So now how to find those kind of links? So for example, fashion, resource पेज लिखते हैं. ओके, इससे क्या होगा कि फैशन के जितने भी रिसोर्स पेज है वो सब आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये पेज आया, अगर यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज लिंक किए होंगे, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने ये पिंटरेस्ट के सारे लिंक्स दिए हुए हैं फैशन के. ओके, आई थिंक इसमें इतने ही है, बट देयर माइट बी मेनी मोर. ऐसे बहुत सारे पेज होंगे जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ लिंक किया होगा. और लेट मी जस्ट से fitness. So these are all experiment that you have to perform. और आपको ऐसी लिंक्स फाइंड करनी है जो ब्रोकन है. अगर ये लिंक्स ब्रोकन है, then what I'll do is I will just a second. Okay, these are the different links. Okay, now ये एक रिसोर्स लिंक है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि बेस्ड योगा मैट्स की ये 5 लिंक्स दिए हुए हैं जो अलग अलग साइट पे जाती है. अभी मैं ऐसे पेजेस ढूंढूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सी लिंक ब्रोकन है. अभी ये ब्रोकन लिंक एक एक करके नहीं देखना है आपको. एक क्रोम एक्सटेंशन आता है जो आपको ब्रोकन लिंक ये पेज में है कि नहीं वो दिखा देता है लिंक के बाजू में यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसा एक एक्सटेंशन आता है ब्रोकन लिंक एक्सटेंशन फॉर क्रोम. अगर वो एक्सटेंशन आप ऐड करते हो तो यहाँ पे ही पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रोकन लिंक है. अगर इसमें ब्रोकन लिंक है, देन व्हाट यू कैन डू इज, इसका जो भी ऑथर है या जो भी ये वेबसाइट जिसकी भी है, तो वेबसाइट से कांटेक्ट में जाके या कहीं से भी उनका ईमेल एड्रेस ढूंढो, उनको मेल करो कि आई हैव कम अक्रॉस योर आर्टिकल, इट इज रियली नाइस आर्टिकल एंड I was reading your article while I found that one of your link is not working and I tend to have similar topic article on my website, so if you can remove that link and link to my website, it would be really nice. So ऐसा करके मैं email लिखूंगा and I will email them. तो there are 100% chances कि वो लोग हमें लिंक देंगे because वो लिंक चल नहीं रही है, राइट? एंड अगर हम हमारी लिंक भेजते हैं तो दे आर मोर लाइकली टू ऐड दैट लिंक, बिकॉज उनको सर्च करने नहीं जाना पड़ेगा नई लिंक के लिए, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ब्रोकन लिंक्स और उसको ईमेल करके कर सकते हैं. सो बेसिकली बैकलिंक बिल्ड करने के लिए आपको ईमेल आउटरीच करना है एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. आप अपनी whatever industry are there, let's say फैशन इंडस्ट्री है या फिटनेस है, तो वो इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे जो कुछ ना कुछ ब्लॉग करते रहेंगे उसके बारे में और ट्रैफिक लाते रहेंगे.
तो उनको भी अप्रोच कर सकते हो गेस्ट पोस्टिंग के लिए, या फिर उनको अप्रोच कर सकते हो, उनका कोई आर्टिकल है वहां से आपकी वेबसाइट पे लिंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई फैशन ब्लॉगर है जिसने कुछ सलवार कमीज का आर्टिकल लिखा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क देम कि भाई ये मेरा सलवार कमीज सबसे अच्छा बिक रहा है एंड दिस मेनी यूजर हैव बॉट इट और समथिंग लाइक दैट, एंड देन आई विल टेल देम कि आप आपके ब्लॉग में ये काफी वैल्यू ऐड करेगा आपकी ऑडियंस के लिए। एंड व्हाट दे विल डू इज दे माइट ऐड, दे माइट नॉट ऐड, राइट। सो ऐसे 100 ईमेल करोगे तब जाके 10 या 15 लोग शायद ऐड करेंगे आप। So I think email outreach is the key to build backlinks, and that is what you need to do in order to build more and more backlinks. I hope I'm clear enough with the backlinks. Is there any question? सर Yes, sir. तो सर एक Thank क्वेश्चन you. है सर, तो अभी हमने कहा था कि हाँ रूम बोलिए। एक्सटेंशन मतलब हो जाएगा पूरा, सर कौन सा एक्सटेंशन है सर करना? Broker link, Chrome extension, बहुत सारे मिलेंगे, but let's take an example of any. See, this is extension. You can use this. Broker link checker. अगर मैं ये ऐड करता हूँ, I'll show you the demo. Now we were on this page, right? Now आप देखो ये एक्सटेंशन दिख रहा है सबको? सर Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे जितनी भी ग्रीन है वो ब्रोकन लिंक नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी रेड दिखा, इट मीन्स वो ब्रोकन है। मैंने ये एक्सटेंशन ऐड किया क्रोम में और वो स्कैन करेगा पूरा पेज, और अगर स्कैन करने के बाद जहां जहां पे भी ब्रोकन लिंक है उसको रेड कर देगा। ग्रीन है उसका मतलब वो ब्रोकन नहीं है, ठीक है। सो ग्रीन, सारे ग्रीन है, देन यू लीव दिस, आपको इस पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जहां जहां पे आपको मिला कि रेड है वहां वहां पे आप ईमेल कर सकते हो, ओके। ओके सर। Sir, I have a question. और Uh, सर या you mentioned that one of the ways to generate backlinks is guest postings, the websites which encourage us to write for them on a particular topic. So, how राइट। do they generate backlinks for themselves if they are one of the ways to do so for others? What happens is their goal is different, okay? If I'm running a blog on fashion, it means that I am writing a lot of blogs, right? So they also do the same thing. What they do is they pitch other people. Either they pitch businesses, उनको बोलते हैं कि मेरा ये ब्लॉग है, आर्टिकल है, बहुत अच्छा है, एंड यू गिव अ लिंक। या फिर वो दे ऑल्सो रीच आउट टू फेलो इंडस्ट्री ब्लॉगर्स, और वो कोलैबोरेट करते हैं एंड देन वो भी कहीं और जाके गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेकक्रंच सुना होगा आपने, या बिजनेस टेकक्रंच, या ऐसी बिजनेस की बहुत सारी वेबसाइट्स है, योर स्टोरी है इंडिया में, राइट। तो वो सब अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे जाके, जब इफ दे आर बिग दे विल अप्रोच दोस काइंड ऑफ वेबसाइट, इफ दे आर नॉट बिग तो दे अप्रोच फेलो ब्लॉगर, और वो भी कहीं और जाके गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और वहां से भी लिंक लेते हैं। सो ये सब चीजें जो मैंने बताई वो भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो डू ईमेल आउटरीच, के जहाँ पे if they like the article, for example they are writing article on top 10 salwar kameez, right? If somebody is writing an article on salwar kameez trends, तो what they do is वो ट्रेंड्स वाले ब्लॉगर को वो ईमेल करेंगे कि आपके ब्लॉग में ये टॉप 10 का लिंक ऐड करने से आपके ऑडियंस को वैल्यू मिलेगी, राइट? So they also do the same process in order to generate the backlinks, but they also accept the other people's blog because they want to increase their blog ratio, and यहाँ से traffic भी generate करना है उनको। और external link is always beneficial for any blog. आपको external link add करने से आपकी authority भी बढ़ती है technically. I hope your answer. Yes, sir, definitely. Thank you. Okay.
All right. All right, let's move to technical SEO. Now I'll explain you the basics for now. So there are many technical aspects, and I would first recommend that you go to uh, Screaming Frog is one of the free tool. You can download this tool and use it. I think they are allowing 100 or 500 URLs scanning. And what they do is, if you can see this screenshot, they scan all the URLs and they will let you know okay, where is the problem in terms of technicalities in your website. Is there any error? Is there any broken link? Is sitemap is not submit? So there are many parameters that they are able to give you. And all those parameters, I think they will, this tool will give you, and you can just go and fix it. So this is a very easiest way to perform the technical SEO. So these are some parameters that I would like to talk today. One is sitemap. If you are using WordPress, sitemap will automatically be generated, or maybe you can use tools to generate the sitemap, and that sitemap will go to Google Search Console. There is a tool from Google called Google Search Console. वहाँ जाके submit कर दो. So now Google will know all the sitemap कि कहाँ पे वो submit करना है. Right? I mean कौन सी URL आपकी website पे है. So they will be able to crawl all those URLs. Then you have to identify the errors if there are any. So if you can see here, this is a tool called Google Search Console. So if there are any errors on your website, so this tool will show you कि कहाँ पे coverage में issue है. Coverage मतलब crawling में issue है. अगर कोई website का URL crawl नहीं हो रहा है, right? तो यहाँ पे अगर error है तो Google will show you. Okay? And what you need to do is you need to understand कि क्या problem है and you have to fix it. Then of course mobile friendly website is very important. Then you have to fix broken links. जो हमने अभी broken link checker का tool बताया वो आप use कर सकते हो अपनी website पे भी. अगर कोई broken link है तो वो red दिखाएगा. Go and change it. Then use HTTPS. HTTPS is this. यहाँ पे secure होना बहुत जरूरी है. Then you have to improve your site loading speed. Of course, you have to improve your site loading speed. You can use a tool called Google Page Speed Insight. Okay. For example, if I search for this tool will give me all the parameters that I have to work on in order to improve my website speed. Okay. And there is a recent update from Google which is called Core Web Vital, where we have to fix some and other. There are three major components of Core Web Vital that we have to fix so that our website will load faster. And this tool will give you all the possible insights. Okay. Okay, I'll come here again. Meanwhile, another parameter you have to check is your site structure. Why I'm saying site structure? Because if your site structure is not proper or too complicated, then Google crawler जो आपकी website crawl कर रहा है, I think they will get confused कि कहाँ से कहाँ जाना है, and they have to go too deep, and they might not crawl all the URLs of your website. If you have a website which has thousands of pages, then it is important that your website structure will be very easy. Okay, if you have 10-20 pages, then there is no much big difference because you will not have too many categories or too many levels of pages. Okay, so it is very simple for those kind of website. But if your website is too many pages, then you have to work on the site structure as well. Okay, and let's come here. So in this case, mobile speed is very low, right? So if I have to see all these parameters, and Google has also given me lot of suggestions कि how can I improve this. So JavaScript का use reduce करो. Again, all these changes can be done by developer or website designer or developer, but you can guide them as an SEO. Okay, these are the problems that you need to fix in order to increase the speed. Okay. Likewise, desktop, you can see this is a score, what you need to fix. Everything is there. Okay.
Okay. And the last thing that I want to talk is structured data markup, which is also called schema markup. When I say schema markup, what you need to do is there are many pages जहाँ पे आप FAQs ऐड करते हो. E-commerce है तो वहाँ पे ब्रेड क्रम होता है. ब्रेड क्रम मतलब वो साइट के होम से सलवार कमीज में है, सलवार कमीज से प्रोडक्ट 1 में गया, राइट. तो ऐसे करके जो ब्रेड क्रम होता है वो होता है. फिर आपकी प्रोडक्ट है तो उस पर रिव्यूज होते हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे नीचे शायद रिव्यू भी होगा. कोई रखता है, कोई नहीं रखता है, राइट. बट अगर रिव्यू है तो इट्स रियली गुड. तो व्हाट यू कैन डू इज आप रिव्यू का एक कोड रखे जो आपको जनरेट करना है कोड. ओके. सो स्कीमा मार्क जनरेटर. So there are different type of schema markup. As you can see, article, news, blog posting, then breadcrumb, then event, then FAQ page, how to, job posting, local business. So these are different type of schema markup. अगर आपका पेज इसमें से relevant करता है, जैसे अगर मेरा प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा and then I will add all the details and this guys will give me this code. Okay, what I'll do is I'll put this code on my product page so that Google will now understand कि ये प्रोडक्ट है, इसका नाम ये है, इसका URL ये है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है. तो वो क्या करेगा, whenever our website is ranking on Google, they will show some additional information there very easily. कि इसका रिव्यू दिखाएगा या उसका कोई रेटिंग दिखाएगा या उसने कुछ और एडिशनल लिंक्स रख दिए वहाँ पे, राइट. So that way you will get more visibility in Google and this will really impact on your SEO results. Specifically FAQ schema markup, ठीक है. This is one of the method that we use a lot in production. If मेरे पेज पे मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं तो what I'll do is I'll add all the question answer here and यहाँ पे जो भी कोड जनरेट होगा मैं वहाँ पे ऐड करूँगा. Okay, so whenever I search something in Google, not every time but there are possibility कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर देखे होंगे आपने कभी कभी, राइट. रिजल्ट के साथ यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर भी होते हैं. तो अगर मैंने वो स्कीमा मार्कअप रखा है तो वो वहाँ पे आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है. ओके, सो these are all technical part of it. These are not limited to this. There are a lot more into this, but these are the basic things that you need to take care while doing a technical SEO. Okay, and you can use tool called Screaming Frog. I think that is the best tool out there, and if you use that tool will itself give you a lot of information for free कि आपकी वेबसाइट पे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या फिक्स करना है, etc etc. All right, so that's all from mine. If you want to understand कि क्या चाहिए आपको, so you can go to my website and वहाँ से you can download the checklist. Okay, so there is a free SEO checklist that you can download and you can utilize it whenever you create any content. I mean, whenever you do SEO. Okay, it's not working right now, but I'll fix it. You can go here and check and download the SEO checklist if you want. So now I'm open for any question answer if you guys have. That's all from my end. अगर ये सब जो मैंने बताया, if you perform it practically, I think you will be able to gain a very good result because these are all fundamentals. You don't need to look into anything else. I think आप ये process follow करेंगे, you will be able to get lot more traffic. That's all from my end. Yeah, is there any question? Anyone? You can type in or you can speak. And I hope you like the session. If you have any questions so far, you can always email me. I'm dropping my email address in the chat in case you have any queries. You are welcome to email me. Okay, any questions, guys? So I just want to thank you. The session was very insightful.
Thank you very much. You're welcome. Thank you, I sir. hope you yeah. I hope you learned something today, and I hope you guys will do some practical Sure, after sir. here, because explaining things is different and doing practical is quite different. I think practically doing it will make more sense, and you will also learn. There are free websites builder out there. You can build your website for free without buying a domain name or anything, right? WordPress.com will give you a free domain. Wix will give you a free domain. Build a website, create some pages, content, and perform SEO over there. I think that will really help you learn a lot of things. Also, you will be able to build a portfolio for you in case you are trying to find a job. Then if you have your own website where you brought some SEO traffic, then you can show them while asking for a job. I think it will be really helpful to find a job or a freelance work or anything. Thank you so much, guys. I think it was really nice to hear from all of you that you like the session. Thank you, sir. Yeah. Thank you, All right. sir. Okay, so I'm considering there is no questions. Feel free to email me if you have any question, and concluding the session right now. Thank you so much, guys. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.